Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today's lecture is based on a very interesting as well as important topic of medical biochemistry, and that is cyclic structure and NMRs. In the previous lecture, we have talked about carbohydrates, an energy source for human body. In this lecture, we will going to discuss about cyclic structure. Let's see the introduction part. As the two reacting groups, aldehyde and alcohol groups, belong to same molecule, a cyclic structure take place. If the open chain form of D-glucose, which may be called as aldehydo D-glucose, is taken, they condense the aldehyde group on carbon 1 with the alcoholic OH groups on carbon 5. Two different forms of glucose are formed. When the OH group extends to right, it is alpha D-glucose, and when it extends to the left, it is beta D-glucose. So in this slide, we are talking about the cyclic structure. If I talk about what is cyclic structure, तो cyclic structure in simple words एक ऐसा compound होता है in which at least कुछ उसके जो एटम्स हैं वो कनेक्ट हो जाएं आपस में टू फॉर्म अ रिंग. एक ऐसा कंपाउंड जिसमें जो उसके एटम्स हैं वो इस तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर लें एक साथ कि वो एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करें. और जो उसका रिंग्स हो वो ज़रूरी नहीं है कि सारे रिंग्स एक सेम साइज़ के हों. रिंग्स साइज में vary from like 3 to many tens or even 100 of atoms. तो 3 atoms भी मिल करके एक रिंग बना सकते हैं, 4 atoms भी मिल करके एक रिंग बना सकते हैं, एंड इवन 100 atoms भी मिल करके एक रिंग बना सकते हैं. अब अगर मैं रिएक्टिंग ग्रुप्स की बात करूं तो वहाँ पर 2 रिएक्टिंग ग्रुप यहाँ पर है. फर्स्ट इज़ एल्डिहाइड ग्रुप्स एंड सेकेंड इज़ एल्कोहलिक ग्रुप. और ये एल्डिहाइड ग्रुप्स और एल्कोहलिक ग्रुप एक सेम मॉलिक्यूल को बिलोंग करते हैं और यही क्या बनाते हैं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. राइट. अब क्या है, अगर एक ओपन चेन है और ओपन चेन क्या बना रहा है, फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, मतलब डी ग्लूकोज से एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसको हम कहेंगे एल्डिहाइडो डी ग्लूकोज. अगर जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें कार्बन 1 है और एल्कोहलिक OH जो ग्रुप है वो कार्बन नंबर 5 पे अटैच है, तो वो क्या करता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज बना रहा है. अगर जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप अगर अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है या मतलब प्रेजेंट है ऑन इट्स राइट, अगर राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है तो वहाँ पर अल्फ़ा डी ग्लूकोज फॉर्म्ड होगा. वेयरएज अगर OH ग्रुप अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है किधर, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वहाँ पर कौन सा ग्लूकोज बनेगा, बीटा डी ग्लूकोज बनेगा. देन कम्स the anamorphs and anamoric compound. But before starting with anamoric and anamoric carbon, let us talk about one topic, that is what is cyclic structure. जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस स्लाइड में इंट्रोडक्शन देखा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरली अराइज होता है स्टूडेंट्स, और वो होता है व्हाट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर, और या हम कह सकते हैं हाउ द साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म. So, in order to transform an open chain carbohydrate into its ring form, an intermolecular nucleophilic addition reaction must take place. Means, in this reaction, a hydroxy group on the open chain sugar nucleophilically attacks the carbon of the carbonyl of that same sugar. Then now comes the anamorphs and anamoric compound. Carbon 1 after cyclization has 4 different groups attached to it, and thus it becomes now asymmetric. Two cyclic compounds, that is alpha and beta, have different optical rotation, but they are not
be same because the compound has the whole or not mirror image of each other. Compounds related in this way are anomers and carbon 1 after the cyclization become asymmetric and is now called anomeric carbon atom. सिंपल है कि जब कार्बन एटम जो कार्बन 1 है जब इसकी साइक्लाइजेशन हो गया इसमें कितने ग्रुप्स हैं 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि क्या है एक साथ ही में अटैच हो रहे हैं 4 डिफरेंट ग्रुप्स व्हेन अटैच टू ईच अदर दे आर फॉर्म्स व्हाट दे फॉर्म्स अ साइक्लिक कंपाउंड और यहाँ पर जब 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स अटैच हो रहे हैं तो ये क्या बना रहा है एसिमेट्रिक ग्रुप बना रहा है क्या होता है कि व्हेन टू साइक्लिक कंपाउंड्स दैट इज अल्फा एंड बीटा हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा और बीटा की क्या है ये 2 डिफरेंट साइक्लिक कंपाउंड है तो जो उनकी ऑप्टिकल रोटेशन है वो भी डिफरेंट हो जाएगी बट दे विल नॉट हैव द सेम मतलब डिफरेंट है सेम नहीं है वाई क्या रीज़न है बिकॉज द कंपाउंड एज होल आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मिरर इमेज यहाँ पर क्या है जो अल्फ़ा और बीटा है इनका डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन है ये सेम नहीं है व्हाट इज़ द रीज़न बिकॉज दे एज अ होल they do not have the mirror image of each other. Compounds related in this way मतलब जहाँ पर उनकी ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट है वो सेम उनकी मिरर इमेज नहीं है तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं एनामॉर्स एंड कार्बन 1 आफ्टर साइक्लाइजेशन जो मतलब इट बिकम्स द एनामोरिक कार्बन एटम then comes the rotation. So this is again a very interesting and very important topic of this topic rotation क्या है when the aldohexose is the first dissolved in water and the solution is put in an optical path so that the plane of polarized light is passed the initial optical rotation shown by the sugar gradually changes until a constant fixed rotation characteristic of sugar is reached this phenomena of the change of rotation is known as mutarotation सो म्यूटा रोटेशन क्या है कि व्हेन एल्डोहेक्सोज को हम वाटर में क्या करते हैं डिज़ोल्व करते हैं और इस जो हम लोगों ने अपना एल्डोहेक्सोज है इसको जब वाटर में डिज़ोल्व कर दिया तो ये एक सल्यूशन बन गया और उस सल्यूशन को हम लोग अगर ऑप्टिकल पाथ में रख देते हैं और उससे हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाते हैं तो जो उसका इनिशियल ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो शोन बाय द शुगर ग्रेजुअली चेंजेस और वो ग्रेजुअली उसका चेंज होता रहेगा इनिशियल ऑप्टिकल रोटेशन कब तक ही चेंज होगा अंटिल अ कांस्टेंट फिक्स रोटेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द शुगर इज़ रीच जब तक कि उसकी कांस्टेंट फिक्स रोटेशन नहीं मिल जाती जब तक कि वो उसकी इनिशियल ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होती जाएगी और इसी फिनोमिना को कहते हैं मतलब इसी फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन को हम लोग कहते हैं म्यूटा रोटेशन इनको सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि म्यूटा रोटेशन इज़ द डिफरेंस इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट ड्यू टू द चेंज इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू एनामोर्स इन द सॉल्यूशन दैट इज एनी मॉलिक्यूल टू शो म्यूटा रोटेशन मस्ट हैव hemacritical or hemacritical groups म्यूटा रोटेशन प्रॉपर्टी was first observed in sugar तो ये क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस कहाँ पर सबसे पहले इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी म्यूटा रोटेशन की अचीव हुई थी तो फर्स्ट म्यूटा रोटेशन वाज ऑब्जर्व्ड इन शुगर्स राइट So if I talk about why muta rotation is so important, muta rotation हमारा क्यों इतना important है, why it is important, then muta rotation has a significant impact on viscosity of the sample and in the consequence on the glass transition temperature. So this is why it is important. Now comes the explanation of muta rotation. Ordinarily crystalline glucose happens to be formed in the alpha form.
The above change in optical rotation represent a conversion from alpha glucose to an equilibrium mixture of alpha and beta forms. The mechanism of mutarotation probably involves opening of hemacetical rings to form a traces of the aldehyde form and then recondensation to the cyclic form. The aldehyde form is extremely unstable and exists only as a transient intermediate. So अगर हम ordinary crystalline glucose कैसे बनता है, happens to be in the form of, जो ordinary crystalline glucose है वो अल्फ़ा फॉर्म में होता है. और जो इनके जो चेंजेस हैं किस चीज़ में, ऑप्टिकल रोटेशन में, वो कन्वर्जन वो रिप्रेजेंट करती है कन्वर्जन ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज to an equilibrium mixture of alpha and beta forms, right? So जो इनका mechanism है म्यूटा रोटेशन का probably involve करता है जो हमारा हेमा एसिटिकल रिंग है to form the traces of what, एल्डिहाइड फॉर्म, और फिर इसको रिकंडेंसेशन करता है कि वो फॉर्म करे क्या, साइक्लिक फॉर्म में. जो एल्डिहाइड फॉर्म इज़ एक्सट्रीमली अनस्टेबल, और ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है और ये हमेशा ट्रांजिएंट इंटरमीडिएट में ही एग्जिस्ट करता है. देन कम्स द होवर्ट प्रोजेक्शन. This is again a very interesting and very important topic of today, that is Howard projection. Howard projection क्या होता है? So let's see the structure. Let's see the topic. The first one says the Pyrannosus. Howard in 1929 suggested that six-membered ring forms a sugar be called as Pyrannosus because pion possess the same ring of 5 carbon and oxygen. Furanosis. Similarly, Howard designed sugar containing 5 members ring as the Furanosis because furon contain the same rings. So what do you understand by this projection? तो projection जो ये है Howard projection formula for glucose, ये क्या कहता है कि सबसे पहले तो what do you understand by this? कि होता क्या है ये होवर्ट प्रोजेक्शन, बेसिकली है क्या? तो होवर्ट प्रोजेक्शन इज कॉमन वे ऑफ राइटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड विथ सिंपल 3-dimension perspective. Howard projection approximate the shape of the actual molecule better for the Furanosis, which are in reality nearly planar than the Pronosis. मीन्स अब हम अगर हम प्रोनोसिस की बात करें, पायरोनोसिस में क्या कहता है कि हेवर्ट ने, जो साइंटिस्ट थे 1929 में, उन्होंने सजेस्ट करा 6-membered रिंग को कि वो शुगर मॉलिक्यूल बनाए, और जो 6 मेंबर रिंग ने जो शुगर बनाया उनको हम लोगों ने क्या दिया, पायरोनोसिस. वेयर एज फ्यूरोनोसिस में क्या हुआ कि साइंटिस्ट होवर्ट ने डिज़ाइन करा शुगर मॉलिक्यूल का कंटेनिंग 5 members रिंग और उसको नेम कर दिया फ्यूरोनोसिस बिकॉज फ्यूरॉन कंटेन द सेम रिंग्स. The pyronosis form of the sugar are identical hemacetical formed by the combination of the aldehyde or ketone groups of sugar with the OH groups on the 5th carbon forms the aldehyde or ketone groups. Similarly, the furanosis forms of the sugar are formed by the reaction between aldehyde or ketone group with the OH group on the 4th carbon from the aldehyde or ketone groups. So जो जो pyronosis form ऑफ शुगर होता है तो ये आर इंटरनली हेमासिटिकल फॉर्म्ड होता है ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन. इसमें कॉम्बिनेशन होता है एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स का. वेराज जब हम फ्रोनेसिस की बात करें, फ्यूरोनोस की बात करते हैं फॉर्म, तो इसमें शुगर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स, और उसमें क्या है विद द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप
और OH ग्रुप यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट होगा, 4th कार्बन पे, वेयरएज जो पायरोनोसिस है वहाँ पर जब जो OH ग्रुप है वो 5th कार्बन एटम में प्रेजेंट है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पायरोनोसिस एंड फ्यूरोनोसिस. पायरोनोस में क्या है कि इसमें कॉम्बिनेशन है एल्डिहाइड और कीटोन का, और जो OH ग्रुप है वो 5th कार्बन एटम में प्रेजेंट है टू फॉर्म फ्रॉम द एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप. सिमिलरली जो फ्यूरोनोसिस है वो फॉर्म करता है शुगर को बाय द रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, और इसमें जो OH ग्रुप है वो किस कार्बन पे मतलब कौन से नंबर पे है कार्बन के, 4th कार्बन पे है टू फॉर्म्स द 4th carbon from the aldehyde or ketone groups. This is the structure of the Howard projection you can see on the screen. Now comes the epimers and epimerization. Two sugar which differ from one another only in configuration around a single carbon are called epimers. तो जहाँ पर 2 शुगर्स हैं जो डिफ़र करती हैं फ्रॉम वन अनदर, और किस बेसिस पे डिफ़र करती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम्स आर टर्म्ड एज epimers. For example, glucose and galactose are example of epimers pair in which differs only with respect of C4. Similarly, mannoses and glucoses are epimers in respect to C2. So हमारी epimers क्या हैं, जहाँ पर 2 शुगर एटम अपने आप को डिफ़र करती है एक दूसरे से, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम, सो उसको epimers कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ epimers. सिमिलरली जो मैनोस हैं और ग्लूकोज हैं आर epimers इन रिस्पेक्ट टू C2. अब एपिमराइजेशन क्या है? एपिमराइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वन एपिमर इज़ कन्वर्टेड टू अदर इज़ कॉल्ड एपिमराइजेशन. तो एक ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर वन एपिमर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है दूसरे एपिमर में, और इस होल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एपिमराइजेशन. और ये रिक्वायर करता है एंजाइम एपिमराइज. एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ गैलेक्टोज टू ग्लूकोज इन लिवर. तो एपिमराइजेशन क्या हुआ कि एक प्रोसेस हुआ जिसमें वन एपिमर इज़ कन्वर्टेड टू अदर एपिमर, और इस प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं एपिमराइजेशन. अब इस कन्वर्जन के लिए हमारी कुछ एंजाइम की ज़रूरत होती है, तो उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं एपिमराइज. फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ गैलेक्टोज टू ग्लूकोज. गैलेक्टोज जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है इन लिवर, इस और विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, एपिमराइज. तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज एपिमराइजेशन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक. यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस जनरली इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन जनरली अराइज कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. या आपको MCQs में पूछा जाता है कि what happen when OH group which glucose or which sugar is formed when OH group is extend towards the right. So the correct answer is alpha D glucose, which when beta glucose is formed, when the OH group extend to the left. ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. देन दे मे आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ एनामोर्स एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एनामोरिक कार्बन एटम. इवन दे कैन आस्क यू अबाउट म्यूटा रोटेशन, कि डिफाइन म्यूटा रोटेशन, और दे कैन ऑल्सो आस्क यू टू एक्सप्लेन म्यूटा रोटेशन, राइट. सो then comes, they can ask you the Howard projection. They can ask you the difference in pyronosis and pherinosis. This is very very important कि pyronosis क्या है और pherinosis क्या है. तो सिंपल है, जब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे
एल्डिहाइड और कीटोन में तो पायरेनॉस फॉर्म होगा, और वो और इसमें क्या है, जो OH ग्रुप है वो 5th कार्बन पे अटैच होगा। वेरस फ्यूरनोसिस क्या है, जब रिएक्शन होगी बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स में और OH ग्रुप हमारा 4th कार्बन पे अटैच होगा, तो उसको हम कहेंगे फ्यूरनोस। Then they can ask you to explain epimers and epimerization. Epimers क्या होते हैं और epimerization क्या होती है? In MCQs they can ask you the name of the enzyme that is used in epimerization process, then that is known as epimerizase. और इसका एग्जाम्पल क्या है? Conversion of galactose to glucose in the liver. So these are the basic questions that can ask you in the exams. Hope you have understood this whole topic. If you face any difficulties related to any slide, you can ask me in the comment section below. Please student, don't forget to subscribe our channel, that is ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. You can also reach our helpline number, that is 7080833450. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.